Good morning, students. Again, this is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, students, how are you? I hope all you are well and fine. Okay, so as we were discussing about Julius Caesar, we have discussed the introduction part and we have discussed act wise summaries, act 1, 2, 3, 4. Almost we have discussed that. And in this video lecture, we are going to discuss about Act 5. Okay, Act 5. So, this is the last act of this drama. Okay, this is the last act of this drama. So, as I mentioned you that today also I mentioned this is for Bardhaman Mahabir Open University, and if it is for adapted to other universities and colleges of this drama, so they also can be benefited by this video lecture. So before entering to this video lecture, I have a small request. If newly you are watching or visiting my channel, please subscribe it at the same time hit the bell icon also. So students, there is no need to spend money for subscribing. There is no need to spend money for comments, like, etc. That is free of cost. So why do you then delaying? So please subscribe and hit the bell icon also, and you need to forward it or share it to your classmates and friends. So this is the last part, or this is the last act. In this act, we will see that Antonius and Octavius, both friends, they gathered their force, and here in other side we may see that Brutus and Cassius, they also gathered their strength and as well as their force. So both were fighting in this last act, and victory comes to Antonius and his friend Octavius. Okay, so then what is written over here according to your text? So by reading this text, I will tell you at the same time, I will translate it also. Okay. On the plains of Philippi. What is Philippi? Philippi is a plain. Already previous act we discussed that. So Caesar's ghost. Okay, Caesar's ghost that appeared to Brutus and says that they will meet at Philippi. Philippi is a place, and that is in the territory of Rome. Okay. सो फिलिपी ये रोम का ही एक स्थान है जहाँ पर उनको मिलना है. मतलब उससे पहले वाली जो एक्ट है उसमें यही देखा कि सीजर क्या कहता है, सीजर का जो गोस्ट है, उसकी जो आत्मा है, वो कहता है कि अब हम मिलेंगे कहाँ पर? फिलिपी में. ये फिलिपी एक मैदान है, एक जगह है, उनके साथ साथ एक मैदान है, और जहाँ पे क्या हुआ कि युद्ध हुआ. ठीक है, जहाँ पे युद्ध हुआ, और युद्ध में हार किसकी होती है, जीत किसकी होती है, और इस युद्ध में इस युद्ध का आखिरी परिणाम क्या होता है, ये सभी बातों को हम इस
खंड के द्वारा, इसे एक्ट के द्वारा हम देखेंगे। On the plains of Philippi, Mark Antony's and Octavius forces face Brutus and Cassius forces. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी देर आर 4 ग्रुप्स ऑफ आर्मी. Okay, one group is for Mark Antonius and another group is for Octavius. Then other side, one group is for Brutus and another group is Cassius. But the fighting is going between Antony, Mark, Octavius and Brutus and Cassius. यहाँ पे 4 ग्रुप जोड़ी जोड़ी होकर के हम देखते हैं। पहला जोड़ा तो एंटोनी एंड ऑक्टावियस का है, इसके इन दोनों का एक एक ग्रुप है। फिर उसके बाद ब्रूटुस और कैसियस, ये दोनों का फोर्स भी है, ये दोनों का भी एक एक ग्रुप है। ऐसा होकर के 4 ग्रुप है, ठीक है, 4 ग्रुप है। लेकिन युद्ध के मैदान के ऊपर 2 ग्रुप लड़ रहे हैं और 2 ग्रुप उनको असिस्ट कर रहे हैं। The 2 sides insult each other, Mark Antony and Octavius, then living with their army. तो दोनों साइड में 2 ग्रुप है और वो एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं। आपने अगर बॉर्डर फिल्म देखा होगा तो थोड़ा सा वो याद करके देखे। एक साइड में सनी देओल उसका टीम है और दूसरी साइड में पाकिस्तान और उसका टीम है। तो ये यहाँ से कुछ बोलता है तो वो वहाँ से कुछ बोलता है। दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे की क्या करने लगे कि इंसल्ट करने लगे। दोनों ग्रुप एक दूसरे को प्रति दहाड़ने लगे। तो ठीक इसी प्रकार का ही घटना यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ी समय के बाद वो क्या करते हैं कि एंटोनियस और उसका ग्रुप जो है ऑक्टावियस, ये वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद फिर हम देखते हैं लेटर इन बैटल विथ मार्क एंटनी एंड ऑक्टावियस, ब्रूटुस सेंड्स ऑर्डर बाया मैसेंजर मार्सेला टू कैसियस फोर्सेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बैटलफील्ड। तो थोड़ी देर के बाद फिर युद्ध शुरू होता है। जैसे कि मार्क एंटनी एंड ऑक्टावियस और ब्रूटुस क्या करता है यहाँ पे, और एक मैसेंजर के द्वारा कैसियस को भेजता है, कैसियस का फोर्स के लिए भेजता है ताकि कैसियस का फोर्स भी बैटलफील्ड में आए, ठीक है। कैसियस फोर्स आर लूजिंग अराउंड टू मार्क एंटनीज फोर्स। अब यहाँ पर हम और एक चीज़ को देखते हैं कि मार्क एंटनीज का फोर्स के साथ कैसियस का फोर्स जो है वो लड़ रहा है, लेकिन अब वो हारने की तादाद पर पहुंच चुका है, ठीक है, हारने की कगार पर वो पहुंच चुका है। ब्रूटुस हैज डिफीटेड ऑक्टावियस फोर्सेस बट इंस्टेड ऑफ reinforcing Cassius force having instead sought out spoils or bounty फ्रॉम द फील्ड। अब कुछ हद तक यहाँ पे ये भी देखा गया कि जिस समय कैसियस का जो फोर्स है वो मार्क एंटोनियस से हार जाता है और ऐसे समय पर ब्रूटुस जो है वो ऑक्टावियस को क्या करता है, हराने के स्थिति पर आ जाता है। लेकिन युद्ध में आखिरकार हार जीत तो होता ही रहता है। कुछ टीम थोड़ी देर के लिए जीतता है तो फिर आगे चल कर के वो हार भी जाता है, हारने के बाद फिर उसका भी जीत होता है। ऐसे कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आगे क्या होता है, नीडिंग इंफॉर्मेशन कैसियस सेंड्स टाइटेनियस टू ए नियर बाय हिल टू रिपोर्ट इफ इट इज फ्रेंडली और नॉट। कैसियस instruct Pindarus to go atop a hill to report Titanus
प्रोग्रेस टू हिम। अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो कैसियस क्या करता है, टाइटेनियस को वो एक रिपोर्ट भेजता है, एक पास का एक हिल के और एक रिपोर्ट भेजता है। तो कैसियस क्या करता है, कैसियस इंस्ट्रक्ट पिंडारस, फिर कैसियस पिंडारस को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, हिल के ऊपर जाने के लिए और उसके प्रोग्रेस को देखने के लिए, किसका, टाइटेनियस का प्रोग्रेस को देखने के लिए। अब क्या हुआ, जैसे ये सब बातें चल रहा था तो पिंडारस कौन है, वो उन्हीं के ही ओर से लड़ने वाला एक योद्धा है और उनका दास भी है, ठीक है। पिंडारस सीज टाइटेनियस पुल्ड ऑफ हिज हॉर्स एंड फियर टाइटेनियस हैज बीन कैप्चर्ड। अब पिंडारस क्या देखता है कि टाइटेनियस जो है वो ऑलरेडी कैप्चर्ड किए जा चुके हैं, यानी उनको अभी क्या हो चुका है कि उनको पकड़ लिया गया है। किसको पकड़ लिया गया है, टाइटेनियस को पकड़ लिया गया है। ये टाइटेनियस जो है ये भी इन्हीं की ओर से था, कैसियस की ओर से था। दिस वुड मीन ब्रूटस फोर्स हैव बीन बिटन, सो कैसियस किल्स हिमसेल्फ ऑन पिंडारस स्वॉर्ड। यही दशा देखने के बाद अब आगे और कोई चारा नहीं बचता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि पिंडारस का जो तलवार लेता है और अपने आप को ही घात कर देता है और उसी में उसका मृत्यु हो जाता है। तो अभी ऐसी दशा पर टाइटेनियस जो है अभी कुछ रियलाइज करते हुए और रिटर्न करता है। टाइटेनियस वॉज नॉट कैप्चर्ड बट वॉज ग्रीटेड बाय ब्रूटस विक्टोरियस फोर्सेस। एक्चुअली उसको, पिंडारस को ऐसा लगा कि टाइटेनियस जो है वो पकड़वा गया है, उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन वो और अभी किस तरह से आता है कि जो एक विक्टोरियस फोर्स की तरफ से वो आता है। तो ब्रूटस लर्न ऑफ कैसियस डेथ एंड टाइटेनियस मॉर्निंग कैसियस किल कमिट सुसाइड। अब ब्रूटस को ये पता चल जाता है कि कैसियस जो है, मतलब इसी डर से, किसके डर से, कि आगे का जो उसका जो दूसरे टाइप से एंटोनियस और ऑक्टावियस से, उसी के डर से। और जब उसको पता चलता है, इस तरह लगता है कि टाइटेनियस जो है वो पकड़वाया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसका हार हो जाता है, तो यही डर से वो क्या करता है कि अपने आप को मार देता है। और यही बात किसको पता चलता है, ये बात ब्रूटस को पता चलता है। जैसे ब्रूटस को पता चलता है तो टाइटेनियस बड़ा मोर्निंग कंडीशन में, और किस तरह से वो आत्महत्या किया उसी बारे में समाचार ला करके ब्रूटस को पहुंचाता है। मोर्निंग यानी जो बड़े दुख जताते हुए वो यहाँ पे आता है। ब्रूटस इंस्पायर्स हिम मैन टू कीप फाइटिंग। लुसिलियस हु इज मिस्टेकन फॉर ब्रूटस इज कैप्चर्ड। तो यहाँ पे ब्रूटस इंस्पायर करता है किसको, लोगों को फाइट करने के लिए, लेकिन लुसिलियस को ऐसा होता है, ऐसा मिस्टेक होता है कि ब्रूटस को क्या किया गया है, कैप्चर्ड किया गया। इवेंचुअली मार्क एंटनी रियलाइज दिस, मार्क एंटनी भी इस बात को रियलाइज करते हैं। द बैटल रेज ऑन एंड एंटनी इश्यूज ऑर्डर फॉर ब्रूटस टू बी कैप्चर्ड डेड और अलाइव। युद्ध बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है ना। कोई मतलब किसी से थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन तभी एंटोनियो जो है वो कहता है कि जिंदा हो या मरा हुआ हो, किसी भी हालत में ब्रूटस को पकड़ लेना चाहिए और किसी भी हालत में ब्रूटस को ले लेना चाहिए। ये था उनके विचार। तो ऐसे दशा में आगे क्या होता है,
tired, weary, but still alive, Brutus finds a place to catch his breath with his few remaining followers. बहुत थका हुआ है, बहुत वरी हो रखा है, यानी चिंतित हो रखा है, न कमज़ोर हो रखा है, लेकिन अभी तक जिंदा है। कौन है? ब्रूटुस है। और ब्रूटुस क्या करता है, एक छोटा सा कोई जगह को प्राप्त कर लेता है ताकि वो अपनी सांस को वहाँ पर ले सके। तो वो अभी कुछ ही उसके जो फॉलोअर्स हैं, कुछ ही है, सब नहीं है यहाँ पे। वन बाय वन ब्रूटुस आस्क फर्स्ट कलिटियस, डार्डेनियस and Voluminous to kill him, but each refused। तो यहाँ पे जो नाम को मैंने आपको पढ़ा है, आखिरकार लड़ते लड़ते उसके साथी ख़त्म हो जाता है ना, जिसके बल पे वो सारा काम कर रहा था वो ही मर जाता है, तो भला उसके पास और हिम्मत कहाँ से रहता है। वो अकेला पड़ जाता है और सामने दो ग्रुप उसके सामने है, दो ग्रुप के साथ उसको लड़ना है। तो इसलिए ये अभी मन में मतलब ये भी अपने आप को मारने के लिए सोच रहा है। और इसी दशा में जो नाम मैंने पढ़ा है ना, वो उनको कहता है कि भाई मुझे मारो, मुझे किल करो। तो आखिरी में क्या होता है कि फाइनली ब्रूटस गेट्स हिज विश बाय फॉलिंग ऑन हिज स्वॉर्ड किलिंग हिमसेल्फ। फिर उसके बाद ब्रूटस क्या करता है, अपने जो तलवार है उस तलवार के ऊपर ही वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, अपने आप वो गिर जाता है, यानी अपने आप को गिराता है वो, और उसी के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑक्टावियस, मार्क एंटोनी एंड मैसेला एंड लुसिलियस आर अराइव। ये सभी व्यक्ति अब कहाँ, तो उसी प्रांत में आकर के पहुंच जाते हैं जहाँ पे ब्रूटस मर गया। सो यहाँ पे और एक व्यक्ति को हम देखते हैं, स्ट्रैटो। ये एक्सप्लेन करता है, स्ट्रैटो एक्सप्लेन्स हाउ ब्रूटस डाइड। ब्रूटस किस प्रकार से मर गया उसके बारे में वो क्या करता है, उनको व्याख्या करता है। मार्क एंटनी pays tribute to Brutus' noble spirit by famously saying, "This was the noblest Roman of them all." Octavius tells his soldiers to stand down as the battle was over। तो इसी प्रकार से जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसका पार्थिव शरीर को देखते हैं, है ना, किस प्रकार से उसका मृत्यु हुआ, स्टैट्यू के द्वारा वो सुनते हैं। सुनने के बाद एक ट्रिब्यूट देते हैं, मार्क एंटनी ब्रूटस को ट्रिब्यूट देते हैं, उसको सम्मान देते हैं। वो इसीलिए कि वास्तविक रूप में अगर इसी का जान गया है तो देशभक्ति के कारण ही गया है। यदि ब्रूटस कोई कदम उठाया था तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। ठीक है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो सिर्फ अपने देश के निमित्त ही क्या किया था, एक बड़ा कदम उठाया था। और आगे चल कर के उसी के चलते उस युद्ध भी होता है और वो मर भी जाता है। तो इसलिए वो उसको सलाम करता है। जैसे ये सलाम करता है तभी ऑक्टेवियस जो है उसका दूसरा साथी मतलब एंटनी का साथी जो है वो अभी युद्ध खत्म हो गया इस बात का घोषणा कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 जो एक्ट को देखा है ना। एक्ट 1 में किस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ लोग कल्पना करते हैं, है ना, सीजर के पावर को लेकर के, और वो अपने मन में सोचते हैं कि भाई कैसे करके उनको मारा जाए, हैं, सीजर को कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसा सोचते हैं। एक्ट 2 में हम देखते हैं कि ब्रूटस को ये जो षड्यंत्रकारी लोग जो है
वो ब्रूटस को अपने ग्रुप में शामिल कर देते हैं। शामिल करने के बाद हम थर्ड एक्ट में भी इसी बात को देखते हैं कि किस तरह से और मतलब ज्योतिषी के बात को इनकार करके, अपने वाइफ की बात को इनकार करके क्या हो जाता है कि एक्ट थर्ड में सीजर जो है उसी सीनेट की तरफ आता है और वहाँ पे घातक दल जो है उनको मार देते हैं। फिर उसके बाद हम फोर्थ में देखते हैं कि अभी एक युद्ध छिड़ जाता है। कहाँ? एंटोनियो और ऑक्टावियस और कैशियस और मार्क ब्रूटस के द्वारा। यानी ये लोग जो किया है, ये तो कहते हैं कि हमने अच्छा के लिए किया, कौन? ब्रूटस। लेकिन एंटोनियो कहता है कि नहीं, और एक अच्छे दोस्त होने के नाते मुझे और इनके खिलाफ लड़ना है। ठीक है, वो भी लोगों को यही समझाता है कि इन्होंने जो किया है गलत किया है। इसी प्रकार फोर्थ में हमने और एक बात को भी देखा कि यहाँ पे केवल थर्ड में वही नहीं मरता, सीजारी नहीं मरता, बल्कि फोर्थ एक्ट में हमने देखा कि पोर्शिया जो है ब्रूटस की वाइफ, वो भी ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ करीब 1,000 सीनेटर्स भी 100 सीनेटर्स भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर आखिरी जो अभी हमने जो देखा उसमें ये 4 ग्रुप का लड़ाई होती है, और 4 ग्रुप की लड़ाई में मतलब एक कैसर की तरफ से एक ग्रुप है, तो जो सीजर की तरफ से ग्रुप है, सीजर तब नहीं रहा, लेकिन जैसा भी सीजर के ग्रुप में एंटनी और ऑक्टावियस रहा, और ये साइड में ब्रूटस और उसका दोस्त कैशियस, ये दोनों रहे, है ना। इस प्रकार के ये जो 4 जन थे, चारों का अपना अपना झुंड था, सिपाहियों का झुंड था। ये 4 झुंड जो है किस तरह से लड़े, और लड़ने के बाद ब्रूटस भी ख़त्म हो जाता है, कैसियस भी ख़त्म हो जाता है। यानी ये कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि ये एक ट्रेजेडी वाली ड्रामा है जिसमें बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया है। तो इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं आगे इसके समरी और एक बार और क्रिटिकल एनालाइज, कैरेक्टर, इस प्रकार से और करीब 3-4 पार्ट की वीडियो बनाऊंगा। तो एक एक पार्ट देखते रहिए, मिस ना करें, और ये आपकी मतलब आप भली भांति अपने टेक्स्ट को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपरेशन हो पाएंगे। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए बाय बाय।